Hello, everyone. My name is Oshin Sharma, and I welcome you all to the most awaited event of 2026 happening right here. आज हम विटनेस करने जा रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स को एंड उनके बनाए हुए अल्टीमेट वेपन को. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बुलाते हैं हम एक ऐसे शख्स को, नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल गाइस. He is just out there from making the most comfortable pillows to giving the best of the best insoles. He has done it all. इनके वायरल ट्वीट्स हो या फिर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, it all shows that he is an incredible, passionate CEO out there. So everyone give a huge round of applause to Freedo CEO and co-founder, Mr. Ganesh Sonavne, everyone. Hi, sir. Thanks. Yeah. So firstly, to my team, to the invited guests here, and to those joining us online, thanks a lot for your time. I am Ganesh Sonavne, co-founder and CEO of Freedo. So Freedo stands for freedom to do more. So we started in 2015 with a purpose to do something better with mechanical engineering, to change lives. And I still remember our first customer like it's day one. His name was Durga Prasad Patnaik. And when we shipped, very few people know that our first product was actually a bathroom chair with wheels. And when he got that product, he called us and he almost cried on call, saying that he could not access washrooms for 6 months after being bedridden, and with our product now he can access toilets and bathrooms independently. And it almost felt like with just our first customer, it felt like our mission was accomplished, and it felt like the whole purpose of forming this company was complete. And from back then to one customer in 2016, today we have 3 million of us, and we are shipping tens of thousands of orders every single day. So very, very grateful for this opportunity to serve all of you. Let me take you to an incident in 2024. We moved to our new office, and this office was like 100x the rentals and the cost of our first office, which we had in 2015. So it was a huge milestone for all of us. So like to almost give us a treat, I thought let me get a gaming chair. But to my surprise, when I tried to buy the gaming chairs, I was super disappointed. That was the time in 2024 we were not into chairs. We were a bestseller in insoles. We were a bestseller in shower commode wheelchairs. We were the fastest growing brand in cushions. But it was that time when I thought that the chair industry has not evolved, and I think we thought that we could do much better product than this, and that was the day when we decided that we will build our own gaming chair. And 2 years from then, we are standing here, and I can confirm that the gaming chair industry today is full of compromises. Let's look at the parts one by one. Like, let's look at what we have got with the current generation of neck rests. So the current neck rest is, it's almost like someone got inspired from a seat belt and they strapped it to a chair, and it's like looks like a butterfly. It's neither a neck rest or a headrest. It's something which looks good as a showpiece. The next thing, which is the backrest, is the most important thing for any ergonomic chair. A rectangular pillow strapped onto a chair with a very cheap plastic, and that is supposed to support your spine. I mean, it's almost a joke at this moment. Some of the gaming chair companies in the planet, what they've done is they have just, instead of improvising on the neck rest and this fluffy pillow, they've just removed it. I mean, what a convenient approach. I just call them lazy. But for those of my friends who have been buying gaming chairs and who have this lumbar pillow, they have to be smart. They just remove it while using it. I know no single person who actually uses that fluffy little pillow. So that's the second compromise which we observed. There is a armrest, which is also a very important element where you're supposed to rest your arms and for accessing your keyboards and the mouse, and that is no less of a compromise. The current generation of gaming chairs, the average ones, they have 2-dimensional armrest. When I say 2-dimensional, it means that
goes up and down, it goes forward and backward. That works still okay, but if you look at high-end gaming chairs, they have these 3D, 4D, 5D, gaming chairs, and people pay a lot for these, and they expect like, oh, this is gonna be a delight. This will actually function, and they just don't work. Like, let me explain. You're playing a game, and you put a little bit of pressure, and tick, it moves. In fact, for my office use, I had one of them, and I'm just talking to someone. My hand moves a bit. It's not stable at all. I think they just forgot to put a locking function in those armrests. So it's like super disappointing. I can't tell you how bad my experience has been, and I'm sure you have seen this if you have tried a 3D, 4D or 5D armrest. So this is about the key parts of the chair. Then comes relaxation. So when we talk about relaxation, a recline, the fundamental reason why I wanted a gaming chair, apart from the fact that gaming chairs are supposed to be par excellence, is that I wanted to relax when I'm tired after long hours of meeting, long hours of work. So this was where I was most shocked, because this is a simple mechanical engineering problem, momentum problem to solve, and almost all the gaming chairs, including that mattress company gaming chair or a bestseller Amazon gaming chair, I tried to recline. Firstly, it doesn't recline well. It just goes probably 130, 135, struggles there. And if you try hard enough, it just kind of tries to topple itself, and I could not take that risk. So I never tried to recline on that chair. Basically, it doesn't work. And then comes additional features where we think of relaxing a person with very, very advanced functions like we're going to present today. I think leave that. They're still struggling with, to summarize, they're struggling with the neck rest, they're struggling with the backrest. There is no good armrest. The recline doesn't work. I think the whole gaming chair industry is full of compromises, and today we are here to fix that. And I'm pretty sure, the teases that have been done in the entire conversation right now, they definitely lead to something really good and really big. And I know the future is going to be really, really good, but we're not just doing it alone. That is also one thing which I know. Absolutely. There's someone really, really special who's going to be a part of this entire journey moving forward, and that someone, I'm pretty sure people would be guessing it, but it's better if we just show them a little tease of who that individual is going to be. Sure, let's do that. Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, if you guys did not know it by now, I'm pretty sure now it's clear, evident, and much more. The man, the myth, the legend, and one of my amazing, amazing friends we have out here. Please welcome with a huge round of applause, Shriman Legend, everyone. अरे बोलने के लिए शुक्रिया, मतलब फ्रेंड हो चुके हैं. अरे हम तो भाई हैं, but ठीक है, चलता है. Super Hello, excited sir. to Hello. welcome you here. Yeah, thank you so much. Thank you so It's our much. pleasure to be with one of the top gamers in the country. आइला मस्त. एंड देखिए, अब हमने बहुत सारी चीजें तो अभी तक रिवील कर दी हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आपकी कॉन्वर्सेशन, आई एम प्रीटी श्योर आपने चेयर की बात सुन ली है. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस चेयर, एंड आपके लिए व्हाट डज दिस चेयर मीन एज अ गेमर? मैं ये तो जानना चाहूंगा. देखो, मैं गेमर हूँ, और गेमिंग कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी गैजेट हो ना, गेमर एक्साइटेड ही होता है. और इस चेयर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये चेयर नहीं है, ये एक हथियार है. अब ये हथियार क्यों है, ये आपको ओशन जी बताएंगे. मैं तो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम गेम की और चेयर की और आपकी और बात करें, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट अप विद द काउंटडाउन्स, ताकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर आया जा सके. सो व्हाट डू यू गाइस से, शैल वी? पर्दा उठाने का प्रक्रिया. Yes, I think we are ready. So let's get on with the countdown right now. या वन टू थ्री
Alright, so ladies and gentlemen, boys and girls, this is the first appearance of the brand new Fredo Vajra gaming chair. The most powerful, insanely comfortable, and you know, when we just talk about it, highly adjustable and highly ergonomic chair that there is. I know what you guys must be thinking out here. देखिए, इस वज्र की और ज्यादा बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं सही इंसान हूं, बट यहाँ पर रेस्ट मोड चालू हो चुका है. So we'll let them rest a bit, but as soon as they get up, I'm pretty sure they're gonna show you amazing features and they're gonna talk more about the chair. So I'll leave it to them, and I'm pretty sure they're happy resting right now. कहाँ जा रहा है गणेश सर? Yes. वो तो चला गया, आपने कोई संभालना पड़ेगा. Yes. 2 मिनट में नींद आ गई थी मुझे एक्चुअली. थोड़ा भी रेस्ट करने और टाइम मिल जाता तो मजा आता. बात तो है कि बैठने के तुरंत बाद कंफर्टेबल ऐसा फील हो जाता है कि 8-10 घंटे तो आराम से बैठ जाऊंगा और 8-10 घंटे के बाद सो जाऊंगा. तो आप अभी इसको यूज कर रहे हैं Yeah. काफी टाइम से. तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? क्या आपने ऑब्जर्व किया? क्या आपको पसंद आया? क्या आपको लगता है कि बेटर हो सकता है? देखिए, जितना भी मैंने यूज़ किया है अभी, ऑब्वियसली इसका पूरा R&D करके ही ये चेयर यहाँ पे आई है, तो इसमें और बेटर होने लायक कोई चीज़ ही नहीं बची है. और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि इसमें जो फीचर दिए वो कोई मार्केटिंग गिमिक है वगैरह नहीं. आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फीचर है, और आप जब एक्चुअली इस पर बैठोगे ना, तब आपको फील होगा कि किसी प्रीमियम प्रोडक्ट पे आप बैठे हुए हो. गुड. सो अभी मैं आपको इससे पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट द गेमिंग चेयर, और उसमें मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस के बारे में बात की कि एग्जिस्टिंग गेमिंग चेयर्स में कैसे उन्होंने बटरफ्लाई टाइप सीट बेल्ट प्लास्टिक का रैप लगा के नेक रेस्ट बना दिया है. हाँ. जो नेक रेस्ट है कि हेड रेस्ट है वो भी मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज ना वो नेक के इधर फिट होता है ना वो हेड को सपोर्ट देता है. एंड स्ट्रैप लगाने की जगह हमने इसको मैग्नेटिक बना दिया. सो फर्स्टली वो स्ट्रैप्स के साथ वी जस्ट किल्ड दो स्ट्रैप्स, एंड दिस इज लाइक अ मैग्नेटिक मैकेनिज्म व्हिच इज वेरी सिंपल. बट being a brand which is selling the highest number of neck supports in the internet, we thought we should completely redo the neck rest. And तो ये design you can see, आप बैठिए तो आप उसके बैठ के मैं सो टेक के जाऊंगा. बैठ जाओ. सो इसमें यार नेक रेस्ट आप take कर गणेश सकते सर हो. कैसे Yes, पता है, yes. ये जो है ना, ये तो चीज ये देखो आपका स्पाइन कंप्लीटली नेक इसके हाँ. ऊपर सपोर्ट कर रहा है. तो ये एर्गोनॉमिक डिजाइन है, और इसको ऊपर नीचे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. मतलब इतनी बेसिक चीज़ है, ये भी मिसिंग थी आज मार्केट में, विच आई थिंक वी हैव डन. तो वहाँ से शुरू होता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. आप कुछ बोल रहे थे इसके बारे में? नहीं, मैं वही बोल रहा था कि ये चीज़ है, ये हमेशा गेमिंग चेयर में मैं निकाल के रख देता हूँ. ये मेरे लाइव स्ट्रीम पे आपने देखा होगा कि वो इतनी कंफर्टेबल होती नहीं है, वो दिखती है बट होती नहीं. बट ये आप रख सकते हो, जैसे कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो हमेशा यहाँ पे दर्द होता है, तो वहाँ पे हम कोई ना कोई कुशन लगा देते हैं. तो ये उस तरीके का कुशन है, बट ये उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है. और इसको ना वो लोह चुंबक, क्या उसको कहते हैं, मैग्नेट. तो ये मैग्नेट की वजह से ना ये ऊपर नीचे चीले, मतलब आप ऐसा रिक्लाइन करोगे ना, इसको थोड़ा सा नीचे करो और एडिटिंग को वीडियो डाल के जब तक वो रेंडर हो रही है, रिलैक्स ब्रो, कोई टेंशन नहीं है. और लॉबी में मैं ज़्यादा रहता हूँ ना, तो लॉबी के लिए मेरे को एकदम कंफर्टेबल फील है. तो आराम से पीछे करके लॉबी का एंजॉय करो. लॉबी पता होगा ना, गेम के अंदर होती है. तो उसके बारे में बात करें तो आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो आई वाज अ वेरी एविड गेमर. इनफैक्ट 11th में मैं क्लासेस बंक करके PS2 खेलने चले जाता था. तो काफ़ी अटेंडेंस कम रहता था. और तभी WWE रॉ, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 5, ब्रॉक लेसनर, वो वाज द पीक टाइम ऑफ डूइंग दैट. एंड देन जब कॉलेज में आया, देन आई मूव्ड इनटू स्ट्रैटेजी गेम्स. तो स्ट्रैटेजी गेम्स में एज ऑफ एम्पायर्स, एज ऑफ माइथोलॉजी. तो एक बार एज ऑफ एम्पायर्स में खेलने बैठा, और वो दोस्त लोग नहीं रहते थे वेकेशंस में, तभी इतना इंटरनेट भी नहीं था. सो वी स्टार्टेड प्लेइंग विद द कंप्यूटर्स. तो 1 वर्सेस 1 हार्ड खेल के जीत गए, फिर 1 वर्सेस 1 हार्डेस्ट खेल के मैं जीत गया, फिर मैंने 1 वर्सेस 2 हार्डेस्ट ट्राई किया, बट उसमें मैं हार गया. तो फिर मैंने 2 वर्सेस 3 हार्डेस्ट लगाया कि मेरा एक फ्रेंड कंप्यूटर और सामने 3 हार्डेस्ट. तो वो गेम वो जीतने के लिए एक बार मैं 6-7 घंटे तक कंटिन्यूस खेल रहा था. एंड इनफैक्ट उसके बाद मेरे को ये चश्मा लगा है. तो उससे पहले मुझे चश्मा नहीं था, और पढ़ाई करके नहीं लगा, ये गेमिंग में मुझे चश्मा लगा है. सो गेमिंग इज बेसिकली वेरी वेरी इंटेंस. इट इज़, आई हैव फेल्ट इट टू द कोर दैट बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है बिटवीन
गेमर्स एंड एथलीट्स एंड इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि जहाँ पे यू फील सोर इन द एंड, आपका फोकस होता है गेम खेलने पे और आप बैठे हो एक चेयर में, तो वो चेयर ने आपका काम करना चाहिए। अभी नॉर्मल, जैसे हम नेक रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो नॉर्मल बैक रेस्ट होता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जाके टेक के बैठिए और फिर वो बैक रेस्ट आपके लिए काम करेगा। बट जो हमने डिज़ाइन किया है कि गेमर कभी ऐसे बैठ के खेलता है आगे। सो आप फॉर एग्जांपल वैसे खेल रहे हो तो देयर इज अ सिंगल बटन टच जहाँ पे बैक रेस्ट खुद आपके पास आ रहा है और Without charging. सपोर्ट कर रहा है। यस, सो ये कोई वायर नहीं है। बैक रेस्ट है। श्रीमान, कैन यू प्ले दिस? तो ये देखो यहाँ से ये बैक रेस्ट खुद आप अगर आगे बैठ के खेल रहे हो या आप वीडियो कॉल पे हो या आगे बैठ के टाइपिंग कर रहे हो फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो दिस बैक रेस्ट विल सपोर्ट यू इवन देयर। एंड दुनिया में अभी देयर इज नो अदर गेमिंग चेयर व्हिच हैज दिस काइंड ऑफ अ फीचर। सो इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट वेयर एग्जिस्टिंग गेमिंग चेयर है, उन्होंने एक रेक्टेंगुलर 100 रुपए का पिलो बना के रखा है जिसमें भी उन्होंने वो प्लास्टिक का स्ट्रैप से उसको लगाया है और वो इतना बुरा बनाया कि लोग उसको निकाल के रख देते हैं कि उसके बिना ही खेलो। And to the contrast, what we have made is a completely big shift. We have not only made the static design to be more comfortable, उसको हमने movable 3D electric in one version and mechanical in other version हम लोग ने इसको बनाया है। तो यहाँ पे mechanically भी this can come up and this can go down back। तो तो दो versions है इस chair के, but in both the cases what we have done is इसका एक तो contour is वेरी मच स्पाइनल शेप, प्लस ये खुद आपके पास आता है, आपको इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज हाउ रेडिकल वी हैव गॉन फॉर फिक्सिंग पार्ट बाय पार्ट। तो हमारा वैसे ही अप्रोच है जस्ट टू से कि इसमें बहुत ज़्यादा एर्गोनॉमिक्स है और कंफर्टेबल है, वो ठीक है, मतलब दैट इज द फीलिंग विच वी हैव। बट जब हम लोगों को ऐसा बोलते हैं तो बोलते कि हाउ एग्जैक्टली डिड यू डू इट, एग्जैक्टली क्या है, कैसे है। इसीलिए आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स कि हाँ, नेक रेस्ट है जो आपके नेक को सपोर्ट के लिए बनाया है, बैक रेस्ट है जो आपके बैक को सपोर्ट देने के लिए बनाया है, देयर इज अ थाई सपोर्ट के साथ एम्बेडेड सीट जिसको आप फील कर सकते हैं कि इसका कॉन्टूर्स, इसकी डेंसिटी इज अ वेरी हाई डेंसिटी बैक रेस्ट विच ऑल्सो सपोर्ट्स योर थाई while you're sitting. So this is designed for sitting for longer hours, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। और ये जब हम गेमिंग कर रहे हैं या फिर दिन भर काम कर रहे हैं एंड इवन पढ़ाई कर रहे हैं, आई रिमेंबर IIT JEE में रैंक लेने के लिए आई यूज्ड टू सिट फॉर 12 आवर्स, बीच बीच में एक दो ब्रेक लेके, बट उसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर चेयर्स नहीं था एंड आई डिड फेस डिस्कम्फर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये उसके लिए भी काम आ सकता है। एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेनस होने के बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल सेटिंग में हो तो वहाँ पे आप रिलैक्स भी कर सकते हो। सो रिक्लाइन जिसके हम बात कर रहे थे विच इज़ वेयर वी गॉट द वीडियो स्टार्टेड। सो रिक्लाइन होना भी इज बेसिकली अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। लाइक आप जस्ट रिक्लाइन करके दिखाइए। सो वहाँ पे रिक्लाइन करने के लिए हैंड ब्रेक की तरह एकदम यस पूरा रिक्लाइन हो जाता हूँ। यस, चिल करके ऐसा, और एक हैंड ब्रेक दबाया, रिलैक्स, तो मजा आ रहा है। यस, नेक रेस्ट भी मूव हो सकता है जैसे आपको चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट जब रिक्लाइन करते हैं तो स्टेबिलिटी इज द नंबर 1 एस्पेक्ट। वहां से सब शुरू होता है, बिकॉज अगर स्टेबल ही नहीं है तो जो रिक्लाइन कर रहा है इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिलैक्स्ड उसको नर्वसनेस हो जाएगा। और ये जो स्टेबिलिटी है वो वेरी मच अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एंड आई बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो इसका जो बेस होता है उसका रेडियस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो टेक्निकली जितना बड़ा वो रेडियस होगा उतना ज़्यादा ये चेयर स्टेबल होता है। एंड इसमें जो रेडियस है वो 370 mm है। जो मार्केट में चेयर्स है उसमें 300 to 350 mm होता है। सो वो जो एडिशनल इसमें 50 to 70 mm जो एडिशनल रेडियस है वो इसका स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और स्टेबिलिटी एक चीज़ है जिसकी वजह से ठीक है वो टॉपल नहीं होगा। दूसरा जो चीज़ है वो रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि लेग्स अच्छे से रेस्टेड है, बॉडी अच्छे से रेस्टेड है, बैक में सपोर्ट है, नेक रेस्ट है जिसमें आपको स्ट्रैप्स ऊपर नीचे नहीं करना पड़ रहा है, इट्स अ मैग्नेटिक, तो आगे पीछे करके भी यू कैन एडजस्ट। एंड सो दिस इज द प्रैक्टिकल डिजाइन विच एक्चुअली मेक्स इट वेरी यूजफुल। तो इसको भी अगर हम यूज करें तो ये पीछे जा सकता है, सो दैट अगर किसी को हाथ रखना है तो हाथ भी रख सकते हैं इसके ऊपर। सो आई थिंक ये ओवरऑल
features are designed to make the recline very very comfortable, ergonomic and actually bring in the relaxation element. और वापस भी आएगा सॉफ्टली आ जाता है, लगता भी नहीं है। Yes. वैसे गेमिंग इंडस्ट्री जो है, मतलब गेमिंग चेयर वाली जो इंडस्ट्री, वो कितनी चेंज हुई है। गणेश सर ने जैसे बोला कि वो लंबे लंबे सेशन तक करते थे गेमिंग, 8-8 9-9 घंटे, आपको चश्मा लग गया बट लकीली मुझे नहीं लगा चश्मा, लेकिन मुझे कमर दर्द लग गया था क्योंकि मेरी चेयर है ना, मैं चेयर पे बहुत उछलता कूदता हूँ, तो मेरी चेयर है ना ऐसे ऐसे टिल्ट हो गई थी, जो मुझे पता नहीं चला क्योंकि हम खेलते रहते उतना पता नहीं चलता, ध्यान छोटी नहीं मोटी लगता, चीजें। तो कभी कभी वो ऐसे टिल्ट होती थी, कभी कभी इस साइड पे होती थी, क्योंकि वो नीचे का व्हील बेस घूमता रहता था और मुझे कमर दर्द का बहुत बड़ा इशू हुआ था। लेकिन इन्होंने जो बेस के बारे में बोला, जो इतना पावरफुल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम पीछे ऐसा जब टेकते हैं चेयर पे, तो मैं गिरा भी हूँ चेयर से, जो मेरे लाइव स्ट्रीम पे दिखा भी है, तो जब जोर से टेकते हैं तो वो बैलेंस चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको ऐसा फील होगा कि अरे पीछे इतनी जा रही है बट टच नहीं हो रही है। मतलब गणेश सर आपने अभी जो देखा, हम जब ये खींचेंगे तो वो और नीचे जा रही है, Yes. लेकिन स्टिल वो बैलेंस रहती है। तो वो आपको फील आता है चेयर पे बैठने के बाद कि हाँ ये मजबूत जोड़ है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी तकलादू साइकिल पे बैठे हो, ऐसा लगता है कि ट्रक पे बैठे हो, तो कुछ होगा नहीं। तो नहीं, अच्छा लगा हमें जान के कि आपका एक्सपीरियंस भी वही है जिसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। और उसके बाद अभी हम लोग ने सिर्फ ऑब्जेक्शंस के बारे में बात किया। नेक रेस्ट की बात हो गई, सो नेक को सपोर्ट हो गया, बैक का सपोर्ट हो गया, थाइस का सपोर्ट हो गया, रिक्लाइन हो गया। अभी आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है व्हेन समबडी इज प्लेइंग गेम। तो इसको हमने 4D आर्मरेस्ट जो बोला है, तो उसका मतलब क्या है पहले वो देखेंगे कि 4D होता क्या है, 4 डायमेंशनल का क्या मतलब है। सो सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो ऊपर नीचे जो आर्मरेस्ट जाता है, अप एंड डाउन इट गोज, इट कैन स्टॉप एट एनी लेवल कहीं पे भी दैट रुक यू जाता है, वांट। यस। सो दूसरा जो है इसमें ये आगे पीछे जाता है, विच इज अगेन अवेलेबल इन 2D आर्मरेस्ट ऑल्सो। थर्ड डायमेंशन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कम चेयर्स में, और ये इसका सबसे खास बात है। ये दो फीचर जो मैंने पहले दिखाया वो आपको बहुत चेयर्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो थर्ड डायमेंशन है जिसमें आप ऐसा रख के ये गेम्स खेल सकते हो, मोबाइल गेमर्स के लिए अच्छी चीज। एब्सोल्युटली। तो ये जब आप हाइट प्लस ये एडजस्ट करोगे तो ये हिलता नहीं अपनी जगह से। आप बाकी कोई भी 3D आर्मरेस्ट देख लिए, वो ऐसे होगा ना, आप गेम खेलोगे या कुछ करोगे तो वो हिल जाएगा, उसमें लॉकिंग होता ही नहीं है। इसमें ये लॉकिंग फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड डायमेंशन है जो अंदर भी आता है, बाहर भी जाता है। तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और अंदर भी ले सकते हो। सो ये जो है ये बहुत इसका यूनिक फंक्शन है। उसको छोड़ के कभी कभी क्या होता है कि बॉडी टाइप्स बहुत डिफरेंट है, और ये जो चेयर है हमने बनाया अप टू 120 kgs दिस सपोर्ट्स। तो उसमें कोई मोटा है, कोई पतला है, तो किसी का स्ट्रक्चर में शोल्डर से सिंक में रहने के लिए ये जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है। तो ये राइट एंगल होने के टाइम वो ये भी मैटर करता है, ये एंगल भी जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए ये फोर्थ डायमेंशन कम्स इनटू प्ले, वेयर ये यहाँ से प्रेस करके अंदर बाहर आता है। तो ये 4 डायमेंशनल आर्मरेस्ट है, और हमें तो लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी वाले फीचर्स है जो एक आर्मरेस्ट में होना चाहिए। एंड जब मैं खुद अपने आप के लिए, इवन मैंने 70-80,000 के इंटरनेशनल गेमिंग चेयर्स देखे, उसमें भी मुझे ये फीचर्स नहीं मिले। या तो रिक्लाइन नहीं है, या नेकरेस्ट नहीं है, या आर्मरेस्ट ऐसा है, या फुटरेस्ट ही नहीं है। इवन वर्ल्ड के टॉप बेंचमार्क्स को हमने स्टडी किया, इंडिया के तो जो बेंचमार्क्स है वो मतलब बेसिक फीचर्स में भी मार खाते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि कहीं तो इस कम्युनिटी के साथ डिससर्विस हो रहा है कि जहाँ पे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ AI एंड लॉट ऑफ रोबोटिक्स कमिंग इन, बहुत फास्ट एडवांसमेंट्स हो रहा है, और ये इंडस्ट्री बहुत ओल्ड स्कूल चल रहा है। लोग लाइट लगा के उसमें बहुत फैंसी, अरे मस्त है, दिख रहा है, वो ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए, बट इतने अच्छा काम भी करना चाहिए। बिकॉज गेमर स्टाइल मारने के लिए नहीं बैठ रहा है। ऑफ कोर्स चेयर स्टाइलिश होनी चाहिए, बट वो गेमर के लिए काम भी आनी चाहिए। जब वो खेल रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट उसको खेलते समय ये ना लगे कि अरे मैंने बहुत ज़्यादा खेल लिया तो मुझे कुछ बैक पेन या नेक पेन हो जाएगा। सो फंक्शनली जो है इसको हमने बहुत ध्यान रख के डिज़ाइन किया हुआ है। और ये सब हो जाने के बाद, ये तो बेसिक फीचर्स हो गए, हमने इसमें एक डिलाइट और एक सरप्राइज फीचर ऐड किया है, विच इज द हैप्टिक मसाजर। So I would like to know your experience regarding the massager, because it's a light relaxation vibration, जिससे आपको कैसा फील हुआ, हमने वो सोच के इसमें इंटीग्रेट किया है। आपको पता है कि जब पहली
दफ़ा मैंने चेयर को देखा ना, तो वो मुझे ऑन करके बताया, तो मैं ऐसा एकदम खुश हो गया, ये इसमें है, बोलो वाह। मतलब आप कंटिन्यू चालू नहीं रखना है उसको, लेकिन जब भी आपको ऐसा फील है ना कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है या थकावट आ रही है, तो आप उसको चालू करो, फिर आप उसका मजा लो, आपको तब उसका महत्व समझेगा। और मुझे उसकी हैप्पीनेस +1 तब हुई जब पता चला कि ये चार्जिंग है, ये चार्ज करो, चार्ज करने के बाद छोड़ दो और फिर मसाजर नॉर्मली चलेगा। ये जो पीछे आगे होता है वो भी मशीन के द्वारा ही चलता है। तो ये पहली बार मैंने किसी चेयर में देखा है, और ये मेरी पहली चेयर है जिसमें मसाजर है वाइब्रेशन वाला, और ये चीज़ है, ये तो मेरी जिंदगी बनने वाला है दोस्तों। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऐसा पैर रख के खेलने में अलग ही मजा आता है, और स्ट्रेच रहता है ना बॉडी पे, तो मजा आता है। तो इसका मजा भी है और एक टेक्निकल प्रिन्सिपल भी है की जेव्हा पाय दुखतात ना, तर पाय वर केल्याने बॅक पेन कमी होतो, हे सायंटिफिकली प्रूव्हन आहे। तर आपल्याला जे बरं वाटतं, सो दॅट इज एन एलिमेंट ऑफ साइंस ऑल्सो इन्वॉल्व की हाँ इट इज रेस्टिंग माई लेग्स, बट उसके साथ वो बैक पेन में भी हेल्प करता है। सो दैट इज यू नो द ब्यूटी ऑफ फुटरेस्ट। एंड आई थिंक गेमिंग चेयर में तो फुटरेस्ट होना ही चाहिए और फंक्शनल होना चाहिए। और ये जो फुटरेस्ट है ना, वो इतना मजबूत भी है ना दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ दिनों के बाद बेंड हो जाएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये अगर आप पे कुछ हमला होता है ना, तो इसके लिए चेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसलिए इसका वज्र नाम है। ये तो ऐसा रॉड दिया हुआ है एकदम मजबूत वाला, टेंशन नहीं है, कितना भी वेट डालो वो झुकेगा नहीं साला, चिल। मैं तो ऐसे खेलने वाला हूँ हमेशा, ये नहीं है, ये बाहर ही रहेगा कंटिन्यू। और दूसरा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दो, आप लाइव स्ट्रीम पे आते रहते हो। सो मैंने ये चेयर यू नो बिफोर वी लॉन्च इसके डिफरेंट वर्जन्स विद द सेम एस्थेटिक 6 महीने ऑलमोस्ट यूज़ किए। तो ये जब वीडियो कॉल, लाइक मैं अभी तो गेम नहीं खेलता, बट ड्यूरिंग माई वीडियो कॉल्स ये थोड़ा ना वो मस्त वाला फील आता है। लाइक जब वीडियो कॉल में फोकस पे दिखता है ना, सो इट लुक्स लाइक अ एलियन वाला फीचर, और बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम स्लीक है। ये वाले कर्व्स जो है ना, तो ये रेसिंग कार वाली फील है, हाँ। रेसिंग कार में बैठे हो आप, तो वैसा फील आता है। लुक्स लाइक वेरी वेरी एडवांस, और ये बहुत लाउड भी नहीं है। आप बहुत सारे चेयर्स देखोगे उसमें बड़ा बड़ा लोगो लिखा रहता है, तो ये ऐसे लगता है कि कुछ तो यू नो ये मेल्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं, इट लुक्स वेरी क्लासी। अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और स्ट्रीम में मेरी चेयर दिख रही है, तो वो चेयर ऐसा एक्स्ट्रा हाईलाइट नहीं होगी कि हाँ जितना श्रीमान दिख रहा है उतनी चेयर दिख रही है, चील है। यस, मतलब मजा आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कई चेयर्स हैं, गेमिंग चेयर, तो एक स्पेसिफिक चेयर है, वो जब मैं यूज करता हूँ ना, तो लोगों को वो चुभती है। वो बोलते हैं अरे वो दूसरी वाली चेयर लेके आना। तो ये वैसा सॉफ्ट चेयर है, मतलब, और वो मेरा फेवरेट कलर है, ये पूरा ब्लैक जरा दिखने में भी अच्छा लगता है। गुड। सो ये आप एक बार ऑन करके दिखा सकते हो, जो मसाजर वाला है बटन, यू नो इसमें एक ब्लू कलर आता है, हाँ, प्लस ये बटन दबाने के बाद ये लाइट जलता है, तो वो इफेक्ट आता है बादशाह वाला, और आराम से आप ये फील है, मसाज ले सकते हो ब्रो। ये मसाज चालू करने का और पार्टी करने का चेयर, और सो जाने मसाज ले सकते हो। ये चेयर मुझे लगता है गेमिंग के लिए नहीं, ये सोने के लिए बनी है कि आप बेड तक जाओ ही मत। कई बार ऐसा क्या होता है गणेश सर, पता है मेरे साथ, कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और मुझे नींद आती है, स्ट्रीम के तुरंत बाद है ना नींद आती है, लेकिन मैं बेड तक जाता हूँ ना, तो मेरी नींद चली जाती है, फिर मैं जागरण मैन बन जाता हूँ। लेकिन इस चेयर की वजह से 2 मिनट में मैं सो सकता हूँ, और फिर कैसा 1-2 घंटे इस पे सोने का, चिल करने का, फिर जाके बेड पे सोने का, रिलैक्सेशन सेम। तो यू नो वेरी वेरी इंसाइटफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई थिंक फीचर बाय फीचर, पार्ट बाय पार्ट, जिस चीज़ के लिए हमने डिज़ाइन किया था, वो अगर आप जैसा प्रो गेमर अप्रूव ना करे, तो आई थिंक उसको यू नो डिज़ाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी हमने डिज़ाइन किया था, वो आपको ना सिर्फ उसको आप अप्रिशिएट करें, वो एक्चुअली आपको लिए यूजफुल रह चुका है, यू नो। सो वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट। भाई बहुत सारी बातें हुई हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को दिखाया भी गया। इनफैक्ट इट लुक्ड लाइक, सी श्रीमान, यू आर लुकिंग लाइक अ पूकी व्हाइल डूइंग ऑल दोस थिंग्स, बट अ प्रॉपर गैंगस्टर। सो ये पता चल रहा है कि एक गेमर की वाइब बहुत अच्छे से निकल रही है, बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू गेमर्स। बट यू नो, कंटिन्यूइंग दिस कॉन्वर्सेशन, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ यू गाइज, एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग उन चीज़ों का जवाब दें, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा सही तरीके से हो जाते हैं। सो गणेश सर, सबसे पहला आपके लिए, देखिए डिज़ाइन की आपने बात करी, हर एक फीचर की आपने बात करी, बट what is that one non-negotiable thing that came into your mind while designing Vajra? So, I think सबसे important was the ability to recline properly, because you know आप एक बार बिना neck rest के कर सकते हो, you know arm rest में भी आप थोड़ा बहुत compromise कर सकते हो, but reclining safely and actually feeling very relaxed when you wanted to,
और उसके साथ जो हमने इलेक्ट्रिक हैप्टिक मसाजर ऐड किया है, सो दैट वाज समथिंग व्हिच वी रियली वांटेड टू पुट इन दिस चेयर. एंड दैट शोज द कंफर्ट दैट जस्ट कम्स डाउन. आप लोग तो सोते सोते, तो जब मैं गया था तब सो ही रहे थे, सो या. बट श्रीमान, हाउ कैन इट इम्पैक्ट ऑन फोकस, स्टैमिना एंड रिकवरी? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर जब आपने बात करी थी कि भाई मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है एकदम से, सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये कितना अच्छा आपके लिए रिकवरी में, स्टैमिना में, फोकस में इम्पैक्ट डालेगा. गेमर्स के लिए ये फोकस्ड क्यों बढ़ाएगा और रिकवरी क्यों देगा? मैंने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब मैं बैठा चेयर पे, तो मैंने एक रिस्पॉन्स दिया था ना कि हा क्या कर तो वहां पे ही पता चलता है कि ये कितना अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको कितना ज्यादा टिकाएगा उस चेयर पे. क्योंकि अगर चेयर कंफर्टेबल होती है ना, तो ही आप परफॉर्मेंस अच्छा दे पाते हो. क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि अगर अनकंफर्टेबल चेयर रहती है ना, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो. 100%. आपको ऐसा लगता है कि चला मेरी नींद नहीं कंप्लीट हुई है, क्या दिक्कत है, खाना नहीं खाया, कुछ तो हुआ होगा. लेकिन वो दिक्कत होती है लॉन्ग सेशन पे. आपका जो चेयर है, मतलब आपका जो आसन है, वो बहुत मैटर करता है. जो कि इसमें तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली. मुझे तो लगता है 8 घंटे आप इस पे बैठ के आराम से गेमिंग कर सकते हो एंड आफ्टर दैट इसी पे सो सकते हो. और आपको नींद भी अच्छी आएगी. ऐसे नहीं कि आप चेयर पे बैठे हो तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि चेयर पे नींद कैसे आएगी, बट वैसा नहीं है. आपके पोस्चर को एग्जैक्टली उसी जगह पे रखता है जहाँ पे वो होना चाहिए, और आप सो जाओ और रिकवर होके फिर से उठ जाओ, लेकिन नहा के गेमिंग करो. वो आई एम प्रीटी श्योर यस ज़रूरी है. अगला क्वेश्चन गणेश सर आपके लिए आता है. देखिए, हमने पूरी चेयर की बात कर ली, हर चीज़ की बात कर ली, बट लेट्स टॉक अबाउट द नेम इटसेल्फ, वज्र. आई एम प्रीटी श्योर इसके पीछे कोई कहानी होगी जो इस नाम के साथ आई है. व्हाई नॉट एनी अदर नेम? व्हाई वज्र केम इनटू एग्जिस्टेंस एज दिस इज, एंड व्हाट डू यू सी जस्ट दिस गोइंग फॉरवर्ड? सो वज्र जो है, इंद्र का वज्र एक बहुत ही पावरफुल टूल है. और वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस है, लाइक अ डायमंड. तो वो रिप्रेजेंट करता है इसकी रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी को. तो ये जो है, इट कम्स विद अ 3-year वारंटी. ओके. और सो लेकिन लाइक अ डायमंड ये बहुत लास्ट करेगा आपके लिए आराम से. मुझे लगता है 3 से 5 साल आप इसको यूज़ कर सकते हो, और उसके आगे भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना उसको यूज़ करें, कितने इंटेंसिटी के साथ आप यूज़ करें. तो आई थिंक वो नाम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है. बहुत एक उसमें थंडरबोल्ट टाइप भी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी वज्र का वन ऑफ द मीनिंग होता है. I mean that was to represent that this is light years ahead of the existing gaming chairs. 100%. And see, I think the next question actually comes for both of you guys. But श्रीमान, आपसे ही शुरुआत करते हैं. डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, टॉपिक बन सकता है, बट कौन से ऐसे लोग होंगे जो आपको लगता है कि बेनिफिट करेंगे इस चेयर से? इस चेयर से मुझे लगता है गेमर्स तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे. क्योंकि गेमर्स ही ऐसे व्यक्ति है जो लंबे लंबे बैठते हैं. आपने तो देखा 12 घंटे 24 आवर्स भाई. हमारे पास तो ऐसे ऐसे गेमर है जो 24-24 घंटे भी बैठते हैं. और उन लोगों के लिए ये चेयर सच में वज्र साबित होने वाली है. एंड गणेश सर, डू यू डिफर और डू यू अग्री, या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन होगा? गेमिंग के साथ तो 100% अग्री. लेकिन इसको बनाने के पीछे मेरा प्राइमरी हेतु जो था वो थोड़ा सा सेल्फिश था. लाइक मैंने बोला ना कि ये मैंने खुद के लिए बनाई है सबसे पहले. बिकॉज मैं खुद गेमिंग चेयर एज अ बॉस चेयर, एक बहुत बड़े ऑफिस में हम शिफ्ट हुए. मैंने बताया आपको कि 100 टाइम्स हम उसका रेंट दे रहे हैं जो हमारा फर्स्ट ऑफिस था उसके कंपैरिजन में. तो हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था. तो लाइक अ ट्रीट मुझे गेमिंग चेयर लेना था. बट वो गेमिंग चेयर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्या गेमर्स के लिए मुझे सूटेबल ही नहीं लगा. तो मुझे लगता है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स जो बहुत लॉन्ग आवर्स तक सिट करते हैं, और स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल हो सकता है. गेमर्स के लिए तो होगा ही, बट आई थिंक इन 2 व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है. हाँ, मतलब पढ़ाई करते करते ऐसा चिल में ऐसा कंटिन्यू. ये पढ़ाई फोन पे हो रही है? अरे नहीं, वो किताब आजकल होती भी है लैपटॉप, किंडल पे पढ़ सकते हो आप. पढ़ाई होती है, खैर लोग. पढ़ाई होती है, खैर कोई बात नहीं. बट थैंक यू वेरी मच आई श्रीमान यू विद ऑल दोस अमेजिंग इनसाइट्स, एंड थैंक यू वेरी मच गणेश सर. आई एम प्रीटी श्योर जिस तरीके से ओवरऑल पूरा निकल कर कह रहा है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइस वुड वांट टू टेल टू द ऑडियंस बिफोर वी जस्ट? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा. पहली चीज़ तो ये जो नाम है वज्र, अभी एक इंडियन ब्रांड है, उसने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बराबर. ये प्रोडक्ट तो कहीं पे भी जाएगा, देश भर में जाएगा, विदेश में जाएगा. और वज्र नाम जब सामने आएगा ना, तो
ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये भारत से आया हुआ प्रोडक्ट है, भारत की कंपनी ने बनाया हुआ है, तो अपने लिए एक प्राउड बात है। तो हमारी एक्चुअली सब्सिडरीज यूएस में भी है और हमारा इनिशियल प्लान इसको यूएस में लॉन्च करने का था, बिकॉज ये चेयर इतनी एडवांस्ड है कि जो वर्ल्ड के भी टॉप 2 गेमिंग चेयर्स हैं उनका भी मैंने टेस्टिंग किया है, ये उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है। तो हमें लग रहा था इसका एक किक स्टार्टर कैंपेन करके यूएस में लॉन्च करना चाहिए। और फ्रीडो का अपना जो कंपनी है उसकी हमारी होली ओन्ड यूएस में सब्सिडरी भी है, यूएई में भी है और यूके में भी है, तो ये वहाँ पे भी लॉन्च होगा। बट अभी ये बहुत कम क्वांटिटीज़ में बनाए हैं हमने, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए भी हमारे पास इनफ क्वांटिटी नहीं है जब हमारे ये वीडियोस जाएंगे। और आज से बाय द वे इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो रहा है, सो फील फ्री टू ऑर्डर, बट ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। और फिर इसके बाद जब इंडिया का डिमांड आई थिंक जब मीट होने लगेगा तब हम लोग दूसरे कंट्री में लॉन्च करेंगे, तो ये प्लान है। तो ये डेफिनेटली इंटरनेशनल जा रहा है और इसका हमने ऑलरेडी इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन फाइल किया है, तो ये ग्लोबल जाएगा प्रोडक्ट। एंड वेल, प्री बुकिंग्स आर नाउ लाइव एज वेल। आप लोगों को QR कोड अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, वहां से जाकर के आप डेफिनेटली प्री बुकिंग्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपने तो अपना हिस्सेदारी बना ली होगी किसी ना किसी चेयर के ऊपर। डू यू हैव एनी फेवरेट्स आउट ऑफ दीज टू विद द कलर स्कीम या कुछ? फ्रीडो के साथ ना मेरा कुछ ज्यादा ही गठबंधन जुड़ चुका है तो वो मैं लेके जाने वाला हूँ। और उन्होंने क्या बोला पता है, एक ही लेके जाने वाला, 2 लेके जाओ। एक से भले 2, ऐसा कौन सा ऑफर है भाई, तो मैं 2 लेके जा रहा हूँ। ओके, एक से भले 2। आई मीन थैंक यू फॉर द गिफ्ट, उसमें से एक मुझे लगता है अपना ही है। I mean definitely, but this was all about an amazing gaming chair, जैसे कि हम लोगों ने बात करी, Vajra gaming chair, all the features were there. Thank you very much Ganesh sir, जिस तरीके से आपने हर एक चीज एक्सप्लेन करी, it was just so amazing with all the simplicity, and we'll see you guys very soon. Till then, take care, bye bye.